Good afternoon, students. From today, we are going to start learning about computer, and we will start with the first chapter, Network Technologies. In this chapter, you are going to learn about how to connect to a network, types of physical and wireless media, and how to access shared resources in a network. Data communication and networking. The process of sending digital data from one computer to other or multiple computers with the help of networking is called data communication. Networking means transmission of data by setting up computer networks. As of now, internet is globally the biggest form of computer network. It means डेटा कम्युनिकेशन में हम जो डिजिटल डेटा होता है उसको एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में या फिर कई सारे कंप्यूटर में भेजते हैं नेटवर्किंग की हेल्प से। नेटवर्किंग एक प्रोसेस है जिससे हम डेटा का ट्रांसमिशन करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क्स की सेटिंग करके। जैसे कि हम जानते हैं कि नाउअडेज इंटरनेट जो है वो सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क है। सो इंटरनेट की हेल्प से हम डेटा ट्रांसमिशन करते हैं एक कंप्यूटर से बहुत सारे कंप्यूटर में, और इंटरनेट के थ्रू हम एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क एंड इट्स कंपोनेंट्स. By computer network, we understand a group of computers and additional peripheral devices which are connected together for transferring the data between hardware devices. For instance, if a computer in a network has a printer connected to it, then all the computers connected to the same network can also access the printer device. कंप्यूटर नेटवर्क एक ग्रुप है कंप्यूटर्स का और कुछ एडिशनल पेरिफेरल डिवाइसेस का जो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं डेटा ट्रांसफरिंग के लिए हार्डवेयर डिवाइसेस के बीच में। ठीक है, आपस में जो हार्डवेयर डिवाइसेस होते हैं उनके बीच में जो डेटा ट्रांसफरिंग होती है वो कंप्यूटर नेटवर्क की हेल्प से होती है। जैसे कि आप एक एग्जांपल ले लो कि जो कंप्यूटर नेटवर्क होता है, मान लो किसी कंप्यूटर नेटवर्क में कोई कंप्यूटर अगर प्रिंटर से कनेक्टेड है तो और जितने भी कंप्यूटर होंगे उस पर्टिकुलर नेटवर्क से कनेक्टेड वो भी उस प्रिंटर का यूज़ कर पाएंगे प्रिंट करने के लिए किसी भी चीज़ को। In a network, all the computers can communicate with each other. Not only this way, they can work independently too. Every computer device connected to the network is a node. The node which broadcasts any information in the network is known as the sender, and the nodes which receive that information are called receivers. The nodes are connected to each other in the network either through wired medium like cables and telephone lines, or through wireless medium such as radio waves and infrared light beams. नेटवर्क में सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, वो इंडिपेंडेंटली भी वर्क करते हैं। ठीक है, और कंप्यूटर डिवाइस जो कि नेटवर्क से कनेक्टेड होता है उसको हम नोड बोलते हैं, और वो नोड जो कि इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट कर रहा है, ठीक है, ब्रॉडकास्ट कर रहा है पर्टिकुलर नेटवर्क में, उसे हम सेंडर कहते हैं। और वो नोड जो उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को रिसीव कर रहा है उन्हें हम रिसीवर बोलते हैं। और जितने भी नोड्स होते हैं वो एक दूसरे से या तो वायर्ड मीडियम के थ्रू कनेक्टेड होंगे या वायरलेस मीडियम के थ्रू। जो वायर्ड मीडियम होता है वो केबल या टेलीफोन लाइंस होती हैं, और जो वायरलेस मीडियम होता है आपका वो रेडियो वेव और इंफ्रारेड लाइट बीम्स होती हैं। तो वायर्ड और अनवायर्ड और यू कैन से वायरलेस मीडियम की हेल्प से जो है जो कंप्यूटर्स होते हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं नेटवर्क में। ठीक है, components involved in a computer network. The different components involved in a computer network are message, transmission medium, sender, receiver, protocol. First, message. It is the data that is transmitted from one node to another in a computer network. It can be in different formats like picture, video, audio, text, etc. Transmission medium. This is the medium through which the information travels from one computer to another or multiple computers in the network. Twisted pair cable, fiber optic cable, coaxial cable, and radio waves are some examples. Sender is the computer device in the computer which transmits information to the other computers. Receiver is the computer device in the network which receives information transmitted from other computers. A protocol is a set of rules defined of communication between network devices.
Data transmission without network protocol is impossible. कंप्यूटर नेटवर्क में बहुत सारे जो है डिफरेंट कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। पहला मैसेज होता है। मैसेज मीन्स वो डेटा जो हम ट्रांसमिट कर रहे हैं एक पर्टिकुलर नोड से दूसरे नोड में कंप्यूटर नेटवर्क में। ये बहुत सारे फॉर्मेट्स में हो सकता है, जैसे कि आपके पिक्चर है, वीडियो है, ऑडियो है या फिर टेक्स्ट है। इन सारे फॉर्मेट्स में हम डेटा मैसेज का ट्रांसमिशन कर दें इन द फॉर्म ऑफ डेटा। सेकेंड ट्रांसमिशन मीडियम होता है वो मीडियम जिसके थ्रू जो है हम इंफॉर्मेशन जो है एक कंप्यूटर से दूसरे या फिर बहुत सारे कंप्यूटर्स में एक पर्टिकुलर नेटवर्क में ट्रैवल करती है, उसे हम ट्रांसमिशन मीडियम बोलते हैं। ट्विस्टेड पेयर केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल, कोएक्सियल केबल और रेडियो वेव्स, ये सारे ट्रांसमिशन मीडियम के एग्जाम्पल्स हैं। तीसरा होता है सेंडर। सेंडर वो कंप्यूटर डिवाइस होती है उस नेटवर्क में जो कि इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करती है अदर कंप्यूटर्स को। और रिसीवर क्या होता है? रिसीवर वो कंप्यूटर डिवाइस होती है नेटवर्क में जो कि रिसीव करती है इंफॉर्मेशन जो कि ट्रांसमिटेड होते हैं अदर कंप्यूटर से, वो बोले जो सेंडर कंप्यूटर होता है उससे। प्रोटोकॉल क्या होता है आपका? प्रोटोकॉल एक सेट होता है रूल्स का जो कि कम्युनिकेशन, जो नेटवर्क डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेशन है उनको इस्टेब्लिश करने के लिए जो है एक पर्टिकुलर सेट ऑफ रूल को हमें फॉलो करना होता है। जो डेटा ट्रांसमिशन होता है वो नेटवर्क प्रोटोकॉल के बिना इम्पॉसिबल है। बिना नेटवर्क प्रोटोकॉल के आप डेटा ट्रांसमिशन नहीं कर सकते। Advantages of a computer network. Computer network has many advantages today. Information can be shared quickly and efficiently over the network from one computer to another. The costs involved are also negligible. So let's start with learning the advantages of computer network. First one is faster and effective data transfer. Second, resource sharing. Third, saving of money. Fourth, access to information on remote computers. Fifth, quick, cheap and reliable communication. And sixth one is security. कंप्यूटर नेटवर्क के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। आज अगर हम देखें तो इन्फॉर्मेशन जो है हम तुरंत क्विकली जो है शेयर कर सकते हैं, एफिशिएंटली शेयर कर सकते हैं एक नेटवर्क से दूसरे जो है नेटवर्क में, एक पर्टिकुलर कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में। जो कॉस्ट की इन्वॉल्वमेंट होती है वो भी बहुत ज़्यादा जो है नेग्लिजिबल है, मीन्स बहुत कम कॉस्ट में हम गुड क्वांटिटी ऑफ डेटा ट्रांसमिशन कर सकते हैं। ठीक है। और अगर हम कंप्यूटर नेटवर्क के एडवांटेजेस की बात करें तो सबसे पहला जो एडवांटेज होता है वो फास्ट और इफेक्टिव डेटा ट्रांसफ़र, मतलब हम जो है बहुत ही जल्दी अपने डेटा को ट्रांसफ़र कर लेते हैं, हम लोग रिसोर्सेज को शेयर करते हैं, मनी सेव होता है। साथ ही साथ जो है हम जो रिमोट कंप्यूटर्स हैं, ठीक है, जो दूर दूर कंप्यूटर्स हम उनसे भी जो है एक्सेस कर सकते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन को भी विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। और जो क्विक, चीप और रिलायबल जो कम्युनिकेशन है वो बहुत ही चीप है, मीन्स महंगा नहीं है, तो हम लोग आसानी से कम्युनिकेट कर सकते हैं। और सिक्योरिटी, ओके, सिक्योरिटी भी है आपकी इन्फॉर्मेशन की, ऐसा नहीं कि आप इन्फॉर्मेशन को सिक्योर नहीं कर सकते। फास्टर एंड इफेक्टिव डेटा ट्रांसफ़र. Data files can be transferred very quickly and reliably on a computer network as compared to other mediums of information sharing. अगर आप अदर मीडियम की बात करें इंफॉर्मेशन शेयरिंग में, तो कंप्यूटर नेटवर्क पे हम डेटा फाइल्स को बहुत ही आसानी से ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बहुत ही क्विकली। जैसे आप एक एग्जांपल ले लो कि अभी आप विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट आप अपना असाइनमेंट वगैरह जो है वो अपनी स्कूल वेबसाइट से डाउनलोड कर रहे हो, तो आप कितनी क्विकली जो है सारी चीज़ों को एक साथ कलेक्ट कर ले रहे हो। तो ये भी एक आपका जो है सबसे पहला एडवांटेज है फास्टर और इफेक्टिव डेटा ट्रांसफ़र का। रिसोर्स शेयरिंग. The hardware devices, printer, hard disk, etc. connected to one computer can be accessed by the rest of the computer devices which are active on the same computer network. Not only this, you can share software too. रिसोर्स शेयरिंग क्या होता है कि जो हार्डवेयर डिवाइसेस हैं, जैसे आपकी प्रिंटर है, हार्ड डिस्क है, ये सारे जो है किससे कनेक्टेड होते हैं? एक कंप्यूटर से। अगर वो किसी जो है कंप्यूटर नेटवर्क से कनेक्टेड है, सेम कंप्यूटर नेटवर्क से, तो वो अदर कंप्यूटर जो है वो भी उसको यूज़ कर सकते हैं जो कि एक्टिव होंगे उस कंप्यूटर नेटवर्क पे। और इस तरह से ऐसा नहीं कि सिर्फ आप हार्डवेयर डिवाइसेस को ही शेयर कर सकते हो, आप सॉफ्टवेयर को भी शेयर कर सकते हो। तो ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कंप्यूटर नेटवर्क का। सेविंग ऑफ मनी. Multiple computers can share a single hardware device or all computers can access a single software. This directly saves a lot of money as separate devices or software are not required. अगर आप कंप्यूटर नेटवर्क की बात करो तो मनी भी सेव होता है। कैसे सेव होता है कि बहुत सारे कंप्यूटर्स जो है सिंगल हार्डवेयर डिवाइस को यूज़ कर सकते हैं
और सारे जितने भी कंप्यूटर नेट जो है वो कनेक्टेड है पर्टिकुलर कंप्यूटर नेटवर्क से, वो एक सिंगल सॉफ्टवेयर को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा कि बहुत सारा जो मनी है वो हमारा सेव होगा, क्योंकि अगर आप बात करो सेपरेट डिवाइसेस की, अगर हम सेपरेटली मान लीजिए 10 कंप्यूटर सेट की हमें रिक्वायरमेंट है और हमारे पास 10 जो है नहीं है हार्डवेयर डिवाइसेस, तो हम एक पर्टिकुलर डिवाइस से ही हम सारे उसको कम्युनिकेट कर सकते हैं, सारे कंप्यूटर्स को ऑपरेट कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है मनी की सेविंग होगी और सॉफ्टवेयर भी उसी तरह से हम यूज़ करेंगे। Access to information on remote computers. With the help of internet, information stored on any remote computer to which a user does not have physical access can be transmitted to multiple computers. This way, we can do a number of things like booking tickets, paying bills, etc. while sitting from the comfort at our home. इंटरनेट की हेल्प से जो है इंफॉर्मेशन किसी भी जो है दूर का जो कंप्यूटर है, जिसमें मतलब अगर यूज़र को इसको फिज़िकली एक्सेस नहीं कर सकता, तो इन्फॉर्मेशन जो है हम उसको भी ट्रांसमिट कर सकते हैं मल्टीपल कंप्यूटर्स को इंटरनेट की हेल्प से। इस तरह से हम बहुत सारी चीज़ें जैसे कि टिकट की बुकिंग हो गई, बिल का पेमेंट हो गया, हम घर बैठे बैठे जो है ये सारी चीज़ें कंप्यूटर नेटवर्क की हेल्प से हम पे कर सकते हैं, टिकट बुक कर सकते हैं। ओके, quick, cheap and reliable communication. Earlier we had to pay a rupee for sending an SMS, but these days with the help of internet network we can send messages to one another in any part of the world without paying for each message. Services like WhatsApp and Facebook Messenger are available without any direct cost. पहले हमें जो है 1 रुपया देना होता था, मतलब पैसे पे करने होते थे अगर हमें कोई SMS भेजना होता था पहले। बट अब आजकल क्या है, इंटरनेट नेटवर्क की वजह से हम जो है एक दूसरे को मैसेजेस भेज सकते हैं किसी भी वर्ल्ड के किसी भी पर्टिकुलर पार्ट में, और हमें कोई ज़रूरत नहीं उस मैसेज के लिए पे करने की। कुछ सर्विसेज है जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक मैसेंजर, यहाँ पे तो आप अपने डेटा की शेयरिंग जो है बिना किसी डायरेक्ट कॉस्ट के ही कर सकते हो। तो एक बहुत ही क्विक, चीप और रिलायबल कम्युनिकेशन हमें मिलता है कंप्यूटर नेटवर्क में। सिक्योरिटी. A computer network also takes care of the security aspects during the transmission of information. Sensitive information can be made password protected. This way, the information can only be accessed by authorized users who know the password. Security. कंप्यूटर नेटवर्क जो है वो सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स की भी जो है वो उसका भी ख्याल रखता है। ट्रांसमिशन, जब आप इंफॉर्मेशन का ट्रांसमिशन करो उस टाइम, जैसे आपकी सेंसिटिव जो इन्फॉर्मेशन होती है आप उसको पासवर्ड प्रोटेक्टेड भी कर सकते हो। इस तरह से इन्फॉर्मेशन जो है वो सिर्फ जो ऑथराइज्ड यूज़र्स है जिनको पासवर्ड पता है सिर्फ वही एक्सेस कर सकते हैं, अनऑथराइज्ड यूज़र्स उसको नहीं एक्सेस कर सकते हैं। ये भी एक बड़ा एडवांटेज है कि वो आपके जो कंप्यूटर नेटवर्क में आपको जो इन्फॉर्मेशन है, जो डेटा है, वो स्टील नहीं हो सकता। विद द हेल्प ऑफ सिक्योरिटी यू कैन सिक्योर इट। ठीक है, आप उसको सिक्योर करके रख सकते हो। मेजर कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क. फर्स्ट, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम NOS. सेकेंड, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड NIC. थर्ड, मॉडेम. फोर्थ, हब एंड स्विच. फिफ्थ, ब्रिज. सिक्स्थ, गेटवे. सेवेंथ, राउटर एंड एट्थ इज रिपीटर. Network operating system NOS. There are two types of operating systems: client operating system COS and network operating system NOS. COS is the common operating system which is installed on personal computers like Windows and Mac. On the other hand, NOS is designed for server computers which manage network resources. NOS supports file sharing, resource sharing, application sharing, etc. over the network. Along with this, it also offers network security in an environment where multiple computers are connected. दो तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं। पहला तो होता है क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम और दूसरा होता है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि पर्सनल कंप्यूटर्स में इंस्टॉल होता है। जैसे आपका विंडोज़ हो गया, मैक है, इन सारे में जो है COS इंस्टॉल होता है। अगर हम नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो ये बेसिकली सर्वर कंप्यूटर्स के लिए ही डिज़ाइन किया जाता है जो कि नेटवर्क रिसोर्सेज को मैनेज करते हैं। NOS जो है वो सपोर्ट करता है फाइल शेयरिंग, रिसोर्स शेयरिंग, एप्लीकेशन शेयरिंग एक पर्टिकुलर नेटवर्क पे। इसके अलावा NOS जो है वो ऑफ़र करता है नेटवर्क सिक्योरिटी, जहाँ पे बहुत सारे जो कंप्यूटर्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर सर्वर से कनेक्टेड होते हैं, उसको वो सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है। Network Interface Card NIC. Network Interface Card is also known as Network Adapter, is a device which allows a computer to connect with a network or other computers. A unique hardware address, which is the Media Access Control MAC address, is embedded on each network interface card.
computers identify each other in a network and share information with each other with the help of this adapter. नेटवर्क इंटरफेस कार्ड को नेटवर्क अडाप्टर के नाम से भी जानते हैं और ये एक डिवाइस होती है जो कि अलाउ करती है कंप्यूटर को जिससे कि वो कनेक्ट कर सके एक पर्टिकुलर नेटवर्क में अदर कंप्यूटर से, ठीक है। एक यूनिक हार्डवेयर एड्रेस जो है वो दिया जाता है, फिक्स होता है वो हर जो है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड पे, जिसको हम मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस के नाम से जानते हैं, ठीक है। कंप्यूटर्स जो एक पर्टिकुलर नेटवर्क में कनेक्टेड होते हैं वो एक दूसरे को क्लियरली आइडेंटिफाई कर लेते हैं और जो इन्फॉर्मेशन की शेयरिंग होती है उनके बीच में ये अडाप्टर की हेल्प से जो है वो आसानी से हो जाती है। टाइप्स ऑफ नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, फर्स्ट इज wired network interface card, second wireless network interface card. Wired network interface card such as Ethernet NIC is used to connect computers to a network. Here data is shared via cables. Wireless network interface card, using radio wave technology, the wireless NICs help the computers to connect with each other in a network. These days, majority of the computer systems and laptops have inbuilt wireless NICs. In case there is a fault with the inbuilt wireless NIC, you can connect an external wireless NIC. दो तरह के नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होते हैं, पहला तो वायर्ड होता है, दूसरा वायरलेस होता है। जो वायर्ड होता है जैसे कि एथरनेट NIC, ठीक है, इसका यूज़ करते हैं हम कंप्यूटर्स को जो है नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए। जो डेटा की शेयरिंग होती है वायर्ड NIC में वो केबल के थ्रू होती है। वायरलेस NIC में क्या होता है कि रेडियो वेव टेक्नोलॉजी का यूज़ करके जो वायरलेस NIC होती है वो कंप्यूटर्स को एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं नेटवर्क में। आजकल ज़्यादातर जो आपके कंप्यूटर सिस्टम्स और लैपटॉप्स होते हैं उसमें इन बिल्ट मीन्स ऑलरेडी पहले से ही वायरलेस NIC दी हुई होती है और अगर कभी कुछ फॉल्ट हो जाता है, ठीक है, इन बिल्ट वायरलेस NIC में, तो उस टाइम पे आप एक्सटर्नल वायरलेस NIC का यूज़ करके जो है आप वापस से कनेक्शन इस्टेब्लिश कर सकते हैं। Modem is a device which is used to convert analog signals into digital signals and vice versa. That is why it is also known as modulator demodulator. मॉडल एक ऐसी डिवाइस है जिसमें आप एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में या डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट कर सकते हो, इसीलिए इसको हम मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर के नाम से भी जानते हैं। वर्किंग ऑफ मॉडम, in a computer, information is stored in digital form. When this information is transmitted to a network, the modem converts this digital information into analog form so that it can be transmitted through cable wire. The receiving computer will also have a modem which converts these analog signals into digital form so that the computer can process that information. ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क में क्या होता है कि जो इन्फॉर्मेशन होती है वो डिजिटल फॉर्म में स्टोर होती है। तो जब हम इस इन्फॉर्मेशन का ट्रांसमिशन करते हैं नेटवर्क में, तो ये क्या करता है, मॉडम कन्वर्ट कर देता है इस डिजिटल इन्फॉर्मेशन को एनालॉग फॉर्म में, जिससे कि वो केबल्स के थ्रू ट्रांसमिट हो जाए। फिर बाद में जो रिसीविंग कंप्यूटर होता है उसके पास भी एक मॉडम होता है जो कि इस जो एनालॉग फॉर्म में जो हमारी इन्फॉर्मेशन आ रही है उसको वो वापस से डिजिटल फॉर्म में कर देता है, जिससे कि क्या बोलते हैं कंप्यूटर जो है उस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कर सके। हमें पता है हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम होता है वो डिजिटल जो है वो बिट्स पे वर्क करता है, ठीक है, बाइनरी बिट 0-1 के फॉर्मेट में। तो हमें डिजिटल डेटा की रिक्वायरमेंट होती है, इसीलिए यहाँ पे हम मॉडम का यूज़ कर रहे हैं। Hub and switch. Hub and switch are network hardware devices that connect devices in a network. The difference between both of them is in their nature of transmitting data. Hub transmits data or information to all the devices connected to the hub. This increases data traffic in the network and slows down the speed. On the other hand, switch recognizes the devices for which the data has to be transferred and sends it to that device only. हब और स्विच जो है वो नेटवर्क हार्डवेयर डिवाइसेस होती हैं जो कि डिवाइसेस को कनेक्ट करती हैं पर्टिकुलर नेटवर्क में। अगर आप दोनों की बात करो, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो उनके मतलब हब और स्विच के बीच का जो डिफरेंस है, ठीक है, वो इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से डेटा को ट्रांसफ़र करें, उनका नेचर क्या है। हब जो है वो डेटा और इन्फॉर्मेशन को जो है वो सारे डिवाइसेस, जितने भी डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं, सब में जो है वो ट्रांसमिट कर देता है, जिससे क्या होता है कि डेटा ट्रैफिक जो है नेटवर्क में इंक्रीज़ हो जाता है और स्पीड रिड्यूस हो जाती है। उसी ऑन द अदर हैंड अगर हम स्विच की बात करें, ठीक है, तो स्विच क्या करता है, वो बस उस डिवाइस को रिकॉग्नाइज़ करता है जिस पे आपको डेटा पर्टिकुलर डेटा को भेजना है और सिर्फ उसी डिवाइस को भेजता है, वो सारे डिवाइसेस को डेटा नहीं भेजता है। Bridge is a device which is used to connect two similar networks. Gateway is a device which is used to connect two dissimilar networks.
ब्रिज क्या होता है? एक डिवाइस है जिससे आप दो सिमिलर नेटवर्क्स को कनेक्ट करते हो, और गेटवे वो डिवाइस है जिसको आप यूज़ करते हो दो डिसिमिलर नेटवर्क्स को कनेक्ट करने के लिए। Router is a device that directs the data traffic in a network to the fastest available path between the sender computer and the receiver. When data is transmitted through a network, it divides itself into tiny packets. These packets take different routes within the network to reach the receiver. When these packets reach the destination, they reassemble themselves and transform into the original message. It is the router which automatically selects the fastest path for the data packet in a computer network. ठीक है, राउटर वो डिवाइस होती है जो कि आपका जो डेटा का ट्रैफिक है, ठीक है, कंप्यूटर में, वो उस अवेलेबल जो भी फास्टेस्ट अवेलेबल पाथ होता है सेंडर और रिसीवर के बीच का, उस पाथ के थ्रू भेज देते हैं। जब हम डेटा का ट्रांसमिशन करते हैं एक पर्टिकुलर नेटवर्क में, तो वो क्या करता है, डेटा को जो है छोटे छोटे टाइनी पैकेट्स में डिवाइड कर देता है। ये जो पैकेट्स होते हैं वो डिफरेंट रूट जो होता है नेटवर्क का, उसके थ्रू जो है वो रिसीवर तक पहुंचते हैं, और जब ये सारे पैकेट जो है डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं, वहाँ पे ये फिर से रीअसेंबल होते हैं और फिर जो है वो ओरिजिनल मैसेज में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। राउटर वो डिवाइस होती है जो कि ऑटोमेटिकली जो सबसे तेज़, मतलब वो उस रास्ते को चूज़ करती है, उस पाथ को चूज़ करती है, जिससे जो डेटा पैकेट हो वो कंप्यूटर नेटवर्क में जल्दी से जो है वो अपने रिसीवर साइड पे पहुंच जाए। रिपीटर इज़ रिपीटर is a device which is used to amplify the signals. How it is amplifying? When data is transmitted over large distances, the signals become weak. So for that we are using repeater device, so that the data signals travel greater distance with the same strength or even more. This communication device cleans the electronic signals and retransmits them. रिसीवर क्या, मतलब रिपीटर क्या करता है, जब हम डेटा ट्रांसमिट करते हैं ज़्यादा दूर तक, ठीक है, लंबी डिस्टेंसेस के लिए, तो उस टाइम पे हमारा सिग्नल वीक हो जाता है, तो उसके लिए हम रिपीटर डिवाइस का यूज़ करते हैं, जिससे कि सिग्नल को एम्पलीफाई कर सके। एम्पलीफिकेशन में क्या होता है, जो डेटा सिग्नल जो कि ज़्यादा दूर तक ट्रैवल करे, ठीक है, उसकी स्ट्रेंथ कम नहीं होती है, मतलब सेम स्ट्रेंथ से ही वो ट्रैवल करता है, और एम्पलीफिकेशन से कभी कभी ऐसा होता है कि जो उसकी जो डेटा का सिग्नल है, ठीक है, वो उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा भी हो जाती है। ये कम्युनिकेशन डिवाइस क्या करती है कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में नॉइज़ आ जाती है उसको क्लीन करती है, और साथ ही साथ उसको वापस से रीट्रांसमिट कर देती है, तो जिससे कि हमारा सिग्नल वीक ना हो, इसलिए हम रिपीटर को यूज़ करते हैं एम्पलीफिकेशन के लिए। दैट्स इट फॉर टुडेज़ क्लास। थैंक यू।